Morning dear friends. In the previous class video, we have completed the topic that is resistance and resistivity. In the last video, we also derived the formula of resistivity that is rho is equal to R into A upon L, and the SI unit of the resistivity was that is ohm into meter. We completed the portion of resistivity and resistance in last class or video. In this class or in today's class, we will solve some numerical based on the topic of resistance, resistivity and Ohm's law. So we will solve some numericals. Let me start the numerical belongs to our NCERT book and some questions which also belongs to the reference book. Then first of all, the first numerical, the language of the first numerical is what is the resistance of an electric lamp? What is the resistance of an electric lamp if the lamp uses 20 ampere when connected to a 220 volt line? This is the language of the numerical. So first of all, we will write down the given values for solving the numerical according to our procedure. So what is given? Then we will again read the line. It means language of the numerical. What is the resistance of an electric lamp? It means we are going to calculate. अगर हम इस न्यूमेरिकल की लैंग्वेज को एक सिंपल डायग्राम से समझें तो इट मींस दैट देयर इज अ इलेक्ट्रिक लैम्प कनेक्टेड विद अ पावर सप्लाई. दिस इज 220 वोल्ट. दिस वन साइन बिलोंग्स टू अल्टरनेट करंट. ये जो हमने यहाँ पर साइन यूज किया है पावर सोर्स का, दिस इज द पावर सोर्स. और ये जो पावर सोर्स का हम एग्जांपल यूज कर रहे हैं दैट इज एसी पावर सोर्स. ठीक है, डीसी के केस में हम सेल और बैटरी यूज करते हैं. ठीक, तो यहाँ पे 220 वोल्ट है इसलिए हम इसको अल्टरनेट करंट यानी कि एसी पावर सोर्स एज्यूम कर रहे हैं यानी कि कंसीडर कर रहे हैं. सो द वैल्यू ऑफ द करंट in the circuit is given 20 ampere. Then voltage supply power source voltage is 220 volt. Then we will calculate the resistance. हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है? इस लैंप का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है. राइट, सो इट मींस दैट इट इज गिवन. व्हाट इज गिवन? सो वी विल राइट डाउन I. Current is given that is 20 ampere. Electric potential, it means power source, that is 220 volt, and we will calculate the value of R. So dear friends, you can assume that which one formula we can use here, because we have the value of VI and we will calculate the value of R, so we can use the formula by the Ohm's law. And according to the Ohm's law, we know that in the solution part we will write down. In the solution part we will write down that is we know that V is equal to IR. From where? By Ohm's law. क्योंकि हमने इसको Ohm's law में स्टडी किया था. So that's why we will put the value that is 220 is equal to 20 into R. One more point we have to learn, that is current should be in ampere. So in this question, value of the current is given in ampere, so there is no change and we will use it directly. So that's why for finding the value of R, we will do the simple simplification according to the mathematics. So that's why we can write down R is equal to 220 upon 20. This implied the value of R will be, by using the simple calculation, by using the table of 2, it will be simplified with the 11 times. So the result will be 11 ohm. So the resistance of this one lamp will be 11 ohm. This is our proper answer. Similarly, we will solve the next numerical. Next one numerical language is when a 12 volt automobile battery is connected across an unknown resistor. There is a current of 2.5 milliampere. There is a current of 2.5 milliampere in the circuit. What is the resistance of the resistor? It means we will calculate the value of resistance of the unknown resistor. Right? It means first of all we will write down again the given value. What is given according to the language of numerical? When a 12 volt automobile battery, it means power source is 12 volt
connected across an unknown resistor, there is a current value of I is equal to 2.5 milliampere, and we will calculate the resistance of unknown resistor. We will calculate. But dear friends, in this numerical, the value of current is given in the form of milliampere. So first of all, we will convert it in ampere, and we know that 1 milliampere is equal to 10 raised to minus 3 ampere. So we can convert it, that is I is equal to 2.5 into 10 raised to minus 3 ampere. Why? Because 1 milliampere is equal to 10 raised to minus 3 ampere. So that's why 1 milliampere is equal to 10 raised to minus 3 ampere. So that's why 2.5 milliampere will be equal to 2.5 into 10 raised to minus 3 ampere. इस तरह से हमने करंट जो कि मिलीएम्पियर की फॉर्म में गिवन है, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है? एम्पियर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है. नाउ वी कैन यूज द फॉर्मूला. सो फॉर द सिलेक्शन ऑफ द फॉर्मूला we can assume, or we can select the formula by according to the conditions or values which is given in this numerical. What is given? Value of V is given, value of I is given, and we have to find out the value of R. So it means that we can use the formula of resistance by Ohm's law, right? So we are using the Ohm's law. It means we are using the formula with the help of Ohm's law. So we will write down, because we know that V is equal to IR. So we will put the value in it. It means 12 is equal to 2.5 into 10 raised to minus 3 into R unknown. In the next step, we will solve. So it will be 12 upon 2.5 into 10 raised to minus 3 is equal to R. This implied R is equal to, we can write down 12 into 10 raised to 3 upon 2.5. ठीक है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन, यानी कि हमें इस स्टेप को सॉल्व करना है तो हम हमारे चॉइस के अकॉर्डिंग इसके अंदर कैलकुलेशन स्टेप्स को यूज कर सकते हैं. सो इन द नेक्स्ट स्टेप इट विल बी R इज इक्वल टू 12 into 1000 upon 2.5. So the R is equal to, this implied 12 into 1000 into 10 upon 25. यहाँ से इस पॉइंट को अगर हम रिमूव करेंगे तो न्यूमरेटर पे हम एक और 10 कंसिडर कर लेंगे. Now by using the table of 25 40 times, so the result will be 4800 ohm. So that's why the resistance of the unknown resistor will be 4800 ohm. And dear friends, you can also write down it as, that is 48 into 10 raised to 2 ohm, right? So this is the proper solution or answer of this one numerical. Now we will solve more numerical. One more numerical we are using in the next step. Now the next one numerical language is, a simple electric circuit has a 24 volt battery. A simple electric circuit has a 24 volt battery and a resistor of 60 ohm. Resistor of 60 ohm means resistance is 60 ohm. Then what will be the current? What will be the current in the circuit? It means according to the language of this one numerical, what is given and what we will find, we will write down. First of all, so what is given, that is V. V is given, V is equal to 24 volt, right? And the resistor of 60 ohm, it means value of R, resistance is given, that is 60 ohm. Then we will calculate the value of current in the circuit. Right dear friends, यहाँ पर हम एक और सिचुएशन को साथ में क्लियर करते हुए चलते हैं कि लेट वी सपोज दिस इज द रजिस्टर. क्या ये रजिस्टर whose resistance is 60 ohm, जब हम इसको किसी सेल और बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं तो उसको कनेक्टिविटी देने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ रहा है? कनेक्टिंग वायर्स यूज करने पड़ रहे हैं. क्या यूज करने पड़ रहे हैं? कनेक्टिंग वायर्स यूज करने पड़ रहे हैं. तो ये कनेक्टिंग वायर्स हैं.
ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर एज्यूम करें कि हमने यहाँ पर अमीटर भी यूज कर रखा है और यहाँ पर हमने वोल्ट मीटर भी यूज कर रखा है वोल्टेज यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए, तो ये सब कनेक्टिंग वायर्स हैं जो कि वोल्ट मीटर को इस रजिस्टर के साथ और इस सर्किट के साथ अटैच करता है, कनेक्ट करता है। सिमिलरली सेल और बैटरी को अटैच और कनेक्ट करने के लिए हमारे कोई एक्स्ट्रा वायर यूज करने पड़ रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये मेंशन होता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स इज नेग्लिजिबल, ऐसा हमें कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज में गिवन होता है। तो इसका मतलब हमें ये समझना होता है कि जो एक्स्ट्रा वायर यूज हो रहा है कनेक्टिविटी के लिए उसका भी रेजिस्टेंस है, क्योंकि है तो वायर, इसलिए रेजिस्टेंस तो उसका भी है, लेकिन यहाँ पर जो हमें कैलकुलेशन करनी है, जिस वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, इस वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ उसी के रेजिस्टेंस को फोकस करना है। यानी कि जो कनेक्टिंग वायर्स हैं उन कनेक्टिंग वायर्स के रेजिस्टेंस को क्या करना है, नेग्लिजिबल कंसीडर करना है, यानी उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को 0 कंसीडर करना है जो कनेक्टिंग वायर्स है उनको। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम कनेक्टिंग वायर्स के रेजिस्टेंस को यहाँ पर अगर नेग्लिजिबल और 0 कंसीडर कर रहे हैं तो फिर हमारे पास एक ही कंपोनेंट बचता है जिसका रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, और वो कौन है, रजिस्टर whose resistance is 60 ohm. But in this numerical we will calculate the amount of current. हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है कि इस अमीटर के थ्रू जो यहाँ पर करंट जो पास हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है। So we will use the formula with the help of Ohm's law. So we will write down in the solution step. We know that V is equal to IR. So that it will be 24 is equal to I unknown into 60. So the result will be I is equal to 24 upon 60. Whenever we will solve, when we will solve this step, then by using the table of 6 we can simplify it. So 10 times and 4 times. So the result will be 4 by 10. So in the next step we can write down 0.4 ampere. So this is the amount or value of current passing through the circuit, right? So this is the proper solution or answer of this one numerical. Now the next numerical, language is the potential difference between the terminals of an electric heater. Electric heater we are using in the language. The potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt. Potential difference value is 60 volt when it drawn a current of 4 ampere. जब इसको 60 वोल्ट की पावर सोर्स से कनेक्ट किया जा रहा है तो इसके थ्रू सर्किट में जो करंट का जो फ्लो हो रहा है, अमाउंट ऑफ द करंट दैट इज 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स. What current will the heater drawn if the potential difference is increased to 120 volt? अगर हम इसी सर्किट के अंदर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पावर सोर्स की वैल्यू को 60 वोल्ट की जगह 120 वोल्ट कर देते हैं तो उस केस में अमाउंट ऑफ करंट फ्लो की वैल्यू क्या होगी? दिस इज आवर क्वेश्चन. ये हमें कैलकुलेट करना है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल सर्किट डायग्राम. इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सिंपल सर्किट डायग्राम बनाते हैं, ठीक? तो स्टार्टिंग में जो रेजिस्टेंस है वो हमें पता नहीं है, यानी कि हीटर यूज हो रहा है, ठीक है? इसको हमने स्टार्टिंग में किससे कनेक्ट कर रखा है, 60 वोल्ट के पावर सोर्स. यानी कह सकते हैं कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यहां पर ये जो पावर सोर्स यूज हो रहा है इसको हम पावर सोर्स कंसीडर कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये इसका दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर. इस इलेक्ट्रिक हीटर के दो टर्मिनल्स हैं, इसके एंड पर जो अगर हमने यहाँ पर हीटर यूज कर रखा है, इसको हीटर जो हम यूज कर रहे हैं, अगर हमने यहाँ पर वोल्टमीटर को कनेक्ट किया तो ये 60 वोल्ट की रीडिंग नोट कर रहा है उस वक्त, ठीक है? और जब ये 60 वोल्ट की रीडिंग नोट कर रहा है तो उस वक्त इस सर्किट के अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, 4 एम्पियर है, राइट? तो 4 एम्पियर है. तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर हम इसी हीटर को वापस से यूज करें, ठीक है, पावर सोर्स अभी भी हमारा वही है, लेकिन अब हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना कर दें, यानी कि यहाँ पावर सोर्स जो हम यूज कर रहे हैं, यानी कि जो सेल और बैटरी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, अगर हम उसके अमाउंट को बढ़ा दें तो बढ़ाने पर जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना कर दिया गया है, 120 वोल्ट. तो उस केस में यहाँ पर जो ये हीटर यूज हो रहा है इसके थ्रू फ्लो होने वाला जो करंट है वो कितना होगा. एंड अकॉर्डिंग टू द Ohm's law we know that V proportional to I. If the temperature is constant, then value of the electric potential difference across the end of the conductor will be directly proportional to the
amount of the current flow in the circuit. तो अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो फिर करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी सर्किट में, इंक्रीज हो जाएगी. तो हमें उस इंक्रीजेस करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, राइट. बट इनिशियल लैंग्वेज में यानी कि स्टार्टिंग की लैंग्वेज में हमें दे रखा है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट है हीटर के एंडिंग पॉइंट पर तो उस वक्त करंट कितना फ्लो हो रहा है, 4 एम्पियर. और अगर हम इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को 60 वोल्ट से इंक्रीज करके 120 कर देते हैं तो करंट कितना होगा. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर, राइट. सो इन दिस वे वी विल राइट डाउन व्हाट इज गिवन in the proper manner, that is V1 is equal to 60 volt, I1 is equal to 4 ampere, and R, which is constant, we will calculate by Ohm's law. So we can write down V is equal to IR or V1 is equal to IR1 या I1 R, क्योंकि R जो रेजिस्टेंस है हीटर का, हीटर तो अभी भी वही है, पहले भी वही डिवाइस थी, अभी भी वही डिवाइस है, ठीक है. तो हीटर थोड़ी चेंज कर रहे हैं, हीटर चेंज नहीं कर रहे इसलिए उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हम R1 और R2 कंसीडर नहीं कर रहे हैं, R को R यूज कर रहे हैं. लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है, करंट का अमाउंट चेंज हो रहा है, इसलिए हमने उसकी नंबरिंग करी है V1 V2 से और I1 I2 के थ्रू. तो पहले हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं इस हीटर का, तो इसके लिए हमने ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज किया है. सो दैट्स व्हाई व्हेन वी विल पुट द वैल्यू, so it is 60 is equal to I1 which is given 4 into R. So in the next step R is equal to 60 by 4. So the result will be 15 ohm. It means resistance of the resistor, जो हीटर यहाँ पर यूज हो रहा है, इस हीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर विल बी, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 15 ओम. तो इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस यूज हो रहा है ये यहाँ पर भी कितना है, 15 ओम है. क्यों है, क्योंकि हमने हीटर को चेंज नहीं किया है, सिर्फ इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया है. और सर्किट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इंक्रीज कैसे होती है, जब हम पावर सोर्स की वैल्यू को बढ़ा देते हैं. जैसे हम सपोज करते हैं यहाँ पे अगर 200 वोल्ट का पावर सोर्स है, अब इसको अगर हम 250 कर देंगे तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, राइट. नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द करंट फ्लो इन द सर्किट इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 120 वोल्ट, राइट. इफ V2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 120 वोल्ट. नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकंड लाइन ऑफ द न्यूमेरिकल 120 वोल्ट हो गया. I2 यानी कि करंट अब हमें कैलकुलेट करना है, और R अब हमारा कितना हो चुका है, 15 ओम, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं. सेम बाय यूजिंग द ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, सो V2 इज इक्वल टू I2R, so it will be 120 is equal to I2 unknown into 15. So it will be I2 is equal to 120 upon 15, right? So we will solve it by using the table of 5. We can solve it. It means 24 by 3. So the I2 will be 8 ampere. So this is the amount of current flow in the circuit when we increase the electric potential difference from 16 volt to 120 volt, right. So this is the proper solution of this one numerical. Now one more or last numerical we are going to solve. Now language of the next one numerical is that a piece of wire is redrawn by pulling it, यानी कि इसको खींचा जा रहा है. A piece of wire is redrawn, इसको दोबारा से यूज किया जा रहा है by redrawn by pulling it until its length is doubled, यानी कि जब तक इसकी लेंथ डबल नहीं हो जाती है वायर की तो उसको खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ठीक है. तो लेंथ जो अगर L है, लेट वी कंसीडर द इनिशियल लेंथ ऑफ द वायर इज L, then after the pulling its length becomes 2L, डबल हो जाती है. The new resistance with the, then compare the new resistance with the original resistance of wire. तो हमारे को यहाँ पर क्या करना है, इसके रेजिस्टेंस को कंपेयर करना है, किसका रेजिस्टेंस कितना होगा, राइट. तो इसको हम सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन व्हाट इज गिवन. अब क्योंकि यहाँ अननोन है तो अननोन होने के केस में हम क्या करेंगे, इसको हम खुद अपनी साइड से एज्यूम करेंगे. दैट इज लेट इनिशियल लेंथ
L1 is equal to L, R1 is equal to R, right? Cross section area A1 is equal to A, एंड वायर कॉमन है, वायर सेम है, तो इसलिए हम उसको पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, यानी कि हम दूसरी कैटेगरी और दूसरे मटेरियल से बना हुआ वायर यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टिविटी विल बी रिमेन सेम और कांस्टेंट. तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी यानी रो की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी, राइट. सो वी विल कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिकॉज R is equal to rho into L upon A. This is the formula. So that's why R1 is equal to rho into L1 upon A1, or we can write down R1 is equal to rho, which is constant. L1 means L, initial length of the wire. A1 means A, cross section area of the wire initially. So it will be the value. ये वैल्यू किसकी होगी? जो इनिशियली जो वायर यूज हो रहा है, यानी कि जब तक हमने उसको खींचा नहीं है, ठीक है, इस तरह से, तो ये इसकी इनिशियल लेंथ थी L और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया था A, तब इस वक्त इसका रेजिस्टेंस कितना है? R है. लेकिन अगर हम इसको खींच दें, खींच के इस तरह से इसकी लेंथ को कितना कर दें? डबल कर दें, तो डबल करेंगे तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 12, और क्रॉस सेक्शन जो एरिया है वो कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? बिकॉज इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव क्लियर्ड दैट व्हाट इज L प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A, राइट. क्योंकि लेंथ जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई है इसके. क्यों हो गई है? क्योंकि R प्रोपोर्शनल टू L एंड R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A. तो अगर हम लेंथ को, उसी वायर को खींच रहे हैं, तो खींचेंगे तो उस केस में क्या होगा? उसका डायमीटर कम होगा. डायमीटर कम होने की वजह से उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी कम हो जाएगा. तो अगर हमने लेंथ को डबल किया है तो क्रॉस सेक्शन एरिया उसका रिवर्स यानी कि उसका आधा हो जाएगा. सो द क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी A/2. नाउ आफ्टर pulling the wire, new resistance R2 unknown, L2 12. जब हमने वायर को पुल कर लिया है, खींच लिया है, डबल कर दिया है, तो उस वक्त हम उसका नया रेजिस्टेंस क्या कंसीडर कर रहे हैं? R2. तो उस वक्त उसकी नई लेंथ क्या हो गई? L2. उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा? A/2. पहले जो था उसका जस्ट हाफ हो जाएगा. और रेजिस्टिविटी यहाँ पर भी क्या रहेगी? सेम और कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हमने वायर की कैटेगरी को चेंज नहीं किया है, राइट. सो वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R2 विल बी रो इनटू L2 अपॉन A2. नाउ वी विल पुट द वैल्यू. सो R2 इज इक्वल टू रो इनटू L2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A/2. सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट डाउन बाय द सिंप्लीफिकेशन, दैट इज 2 into 2 into rho into L upon A. ये अपॉन में जो 2 है ऊपर चला जाएगा. So the result will be R2 is equal to 4 rho into L upon A. And rho into L upon A क्या है हमारे पास? Initial wire का resistance. So it is clear that the value of the new resistance will be 4 times the resistance of the original wire, or we can write down it as R2 upon R1 is equal to 4 upon 1, or R1 upon R2 is equal to 1/4. So this is the proper answer of this one numerical. तो हमने कंपेयर किया, कंपेयर करने से क्या रिजल्ट आया है? Compare, after the comparison the result is the resistance of the new wire after the pulling will be 4 times the resistance of the wire in initial case. जो पहले जो resistance था अब उसका कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि हमने उसकी लेंथ को क्या कर दिया है? इंक्रीज कर दिया है. सो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था. नाउ डियर फ्रेंड्स, आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस फॉर डूइंग द प्रैक्टिस एट योर होम विच इज बेस्ड ऑन दिस वीडियो. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट वन टॉपिक, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, which is very important in this chapter. In that topic we will derive the derivation, it means formula, and then we will solve the numerical based on that topic. Thank you. There are 2 questions for the homework, that is question number 1, the potential difference between the terminals of an electric iron is 240 volt and the current is 0.5 ampere. What is the resistance of the wire? Second numerical is calculate the resistance of 100 meter copper wire. The diameter of the wire is 1 millimeter. Take resistivity of the copper is 1.7 into 10 raised to minus 8 ohm into
meter. Try to solve this question and send me the solutions or doubt through the school app as soon as possible.